All right, so okay. थोड़ा ऐसा pitch सेट करो. You started English, so I thought चलो हम भी अंग्रेजी ठोक देते हैं ना, क्या करेंगे. हजारों लड़के लड़कियों को, बच्चों बच्चियों को काम दिलाया. दादा दादी नाना नानी ऑल्सो कईयों को काम दिलाया. फिल्मी जॉब्स ऐप बना दी है लास्ट 2 सालों के अंदर, जहां स्पॉट बॉय से लेके डायरेक्टर तक, प्रोड्यूसर तक, सर्विस प्रोवाइडर तक कोई भी रजिस्टर कर सकता है. गो अप्लाई अगर आपको काम चाहिए फिल्मी. तो इंटरेस्टिंग. फिल्मी जॉब्स. कास्टिंग का काम क्यों बंद कर दिया सर? शिट, मैं तो सोचा था यहीं पे इसी इंटरव्यू में थोड़ा बहुत ऑडिशन दे देता. थोड़े इंडस्ट्री के तौर तरीके डिफ़िकल्ट होते जा रहे थे. पहले हम लोग बोलते थे लड़कियां सेफ़ नहीं है. 2014 और 12 आते आते पता चला कि आजकल लड़के भी सेफ़ नहीं है. उससे बेहतर है अगर आप लुक में मेरे को कनिंग दिखते हो तो मेरा काम आसान हो जाता है. साला दिखता ही कनिंग है तो इट बिकम्स ईजी. क्यों? क्या दूसरी इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच नहीं होता है? कौन सी इंडस्ट्री है जो क्लीन है? मेरे को एक का नाम बताओ. आई चैलेंज. बोलिए ना, क्या सवाल सर? नहीं ये था बिकॉज अभी हमने काफी अच्छा और सीरियस कॉन्वर्सेशन किया. ओके, अभी लाइटर मोड. दिस कैमरा इज ऑन. हाँ, बहुत अच्छा, ऑन करके तुम चले गए. ऐसा मस्त. All right, welcome to yet another conversation on Entertainment Live. And before we begin, you have to like, share, and subscribe. वो बोलना थोड़ा जरूरी रहता है. Joining us in the conversation is Mr. Raj Israni, founder and managing director of Indian Film History. That's right. Interesting, sir. How are you doing? कैसे हैं? एकदम अच्छा हूँ. हाँ, तो ये जो Indian Film History है, जी, तो ये कोई किताब? No, it's a portal. Okay. It's a live portal. Anybody can access it from the world over, and it has got a milestone of a datas right from the day one when Indian films were made, 1913, till 2024. What films are going to be released, especially Hindi, is 101% accomplished and full. Besides that, all the Indian languages are also covered: Tamil, Telugu, Malayalam, Odia, Assami, Bhojpuri, Punjabi, everything. But they may not be 100% fully covered. But yeah, I'm doing that. It takes a bit of time to accumulate and keep doing it. There are almost 20 boys working. Like I could see your office, so many people are working same way. Even I have a small setup, not as elaborate, but yes, people are working and trying to accumulate and go on compiling. And besides the films, also we cover the television shows. Also we cover OTT platform, also we cover short films. Nothing which is left which is not called entertainment. Okay. Everything is covered, and the specialty of the site is that each product has a page. Suppose you go and try to figure it out, Amitabh Bachchan, so you'll see Amitabh Bachchan, one full page, where all his achievements will be under one page with pictorial. With his biography, with his personal life, with his data and filmography, everything, with his television work, name it, and you can check it. So that is one part I have been developing for last almost 10 years now. 2011 I started. In between I stopped. Again COVID came, bit setback, and the development of the product has taken a long time because the way I had visualized my product to be, it was not getting accomplished. But yes, finally now it is thumbs up, and you can check the data, and it's quite interesting. I'm sure, sir. Yeah. Sir, one thing, हमारा इंटरव्यू हिंदी में. Oh, sorry. Yes. I was. तो okay. मैं पूछा था, but that's you started English, so I thought चलो हम भी अंग्रेजी ठोक देते हैं ना, क्या करेंगे. गलती तुम्हारी. My bad. अच्छा, ठीक है. शुद्ध मन से पुनः. This camera is on. हाँ, बहुत काम. अच्छा, ऑन करके तुम चले गए. ऐसा मस्त. अच्छा, आपके पीछे उधर. ओके, या. तो सर मैं आपकी कहानी से शुरू करते. एक तो आपका नाम राज इसरानी. एक राज ऐसा नाम है जो इंडियन सिनेमा का बहुत ही अभिन्न हिस्सा है. मतलब दी शोमैन.
राज कपूर साहब, जी। उनका नाम राज। जी। फिर शाहरुख खान साहब के बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर का नाम राज। राज। और अब फिल्म का पूरा इतिहास लेकर आ गए हैं राज। राज। तो राज, आपकी कहानी का राज क्या है, या कहानी क्या है? कहानी का कोई राज नहीं है. कहानी हैज़ बिन innovatively come in place right from the day I got married and started working back to settle myself in India. So got into cassette business, which was a piracy then. Then shifted from there, did other businesses. But in 1992, got into creating this outfit, which was also not existing. I have always done the businesses which are not existent, always creative, always new. Oh, sorry. Sorry. मैंने हमेशा ही नई चीज़ें खोजी हैं और नई चीज़ें की हैं. मैंने कोशिश की है मैं किसी को कॉपी ना करूं, और जो जहन में आता है कि ये ऐसी चीज़ होनी चाहिए, मैंने वो तैयार की है. 1992 स्टार्टेड कास्टिंग बिजनेस. वहाँ से जो जर्नी चालू हुई वापस से गेटिंग इनटू एंटरटेनमेंट, जो रुक गई थी कुछ समय तक. कास्टिंग करता था, एक्टरों को काम दिलाता था, and my wife also used to be along with me, and both of us used to work together on the project. And I can say so with proudly that हज़ारों लड़के लड़कियों को, बच्चों बच्चियों को काम दिलाया. दादा दादी नाना नानी also कईयों को काम दिलाया. And we used to place them जहाँ पे ज़रूरत होती थी वहाँ उनको बेचते थे. इतना तक था कि 70 साल के अगर रिक्वायरमेंट होती थी और बुज़ुर्ग होते थे तो उनकी ऑडिशन लेने को मेरे आदमी लोग उनके घर जाते थे. सो दैट सर्विस भी प्रोवाइड करते थे. बहुत सारी कास्टिंग की, बट 2014 में कास्टिंग का काम बंद कर दिया. 2011 में मेरी बिटिया ने डिमांड की कि उसको बिजनेस करना है, और उसको एक आइडिया आई वेडिंग्स में फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करनी है. क्योंकि मेरा बेटा लव इसरानी, ही इज़ ऑल्सो फोटोग्राफ़र है. तो घर में फ़ोटोग्राफ़र था, और फोटोग्राफी का तो रोज़ भंडारे आते थे फ़ोटो के. क्योंकि उस ज़माने में ऐप नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नया था. तो उस ज़माने में फ़िज़िकल फ़ोटोज़ लेके आते थे. तो फ़ोटो के साथ ही हम जीते थे. तो फ़ोटोज़ के साथ करते करते घर में सबका भाव फ़ोटोग्राफी के ऊपर ही था. तो बिटिया ने बोला मुझे ये काम चालू करना है, तो उसमें थोड़ा डाइवर्ट हो गए हम. और 2014 तक वो सेटल हो गया, तो हमने कास्टिंग का काम बंद कर दिया. फिर वापस मैं फ्री हो गया. काफ़ी सारी चीज़ें रिमोट कंट्रोल पे चल रही थी, ऑटो पायलट में चल रही थी, और मेरे पास जो जहन में था इंडियन फिल्म हिस्ट्री रिवाइव किया, और आज वो प्रोडक्ट रेडी हो गई. उसके साथ साथ जो पुराना धंधा था ना, वो भी चालू कर दिया. फिल्मी जॉब, फिल्मी जॉब्स ऐप बना दी है लास्ट 2 सालों के अंदर, जहां स्पॉट बॉय से लेके डायरेक्टर तक, प्रोड्यूसर तक, सर्विस प्रोवाइडर तक कोई भी रजिस्टर कर सकता है. एंड एक्सचेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी. जैसे कि प्रोड्यूसर को अगर कोई कैमरामैन चाहिए, और उसको वो कैमरामैन चाहिए इंदौर में, भाई साहब बॉम्बे में हैं, तो इंदौर के जो कैमरामैन अगर रजिस्टर्ड होंगे हमारी ऐप पे, तो ही कैन सी देयर प्रोफाइल, ही कैन सी देयर वर्क. अगर पसंद आए उसको शॉर्टलिस्ट करके, उससे बात करके, नेगोशिएट करके, ही कैन हायर हिम वाइल सिटिंग इन बॉम्बे. ही कैन हायर एनीबडी एनीवेयर इन इंडिया. ये मेरा आइडिएशन है. क्योंकि पहले क्या होता था, हर इंसान को स्ट्रगल करने के लिए बॉम्बे आना पड़ता था. फिल्म इंडस्ट्री में आना है तो टेलीविज़न बॉम्बे में थी, फिल्में बॉम्बे में बनती थी, तो सब लोग बॉम्बे पहुंचते थे और अपना काम ढूंढते थे. अब ज़रूरत नहीं है. अब जहाँ हो वहाँ बैठे रहो, प्रोफाइल बना लो. अगर तुम शॉर्ट लिस्ट हुए फिर आ जाओ. क्यों पैसे खर्च करने और स्ट्रगल करने की आके शहर में. और काफ़ी सारे पैसे लगते हैं. बॉम्बे बहुत महंगा शहर है. आई थिंक हर एक को मालूम है. तो काफ़ी सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, और अगर कमाई ना हो और खर्च हो, तो काफ़ी सारे फेलियर्स मैंने देखे हैं कईयों के. उन फेलियर्स को देख के मैंने ऐप का डिज़ाइन बनाया है,
ताकि एटलीस्ट एक इंसान अगर कश्मीर में बैठा है और उसकी चाहत है तो वहीं से ट्राई करे। कई टाइम घर वाले मना करते हैं, नहीं नहीं कहाँ जाओगे, कहाँ भटकोगे। सही बात है, घर वाले जाहिर सी बात है प्रेम करते हैं हर बच्चे से, नहीं चाहते हैं कि कहीं बॉम्बे में जाके भटक जाए, कि बॉम्बे में आना तो बहुत आसान है बट मेंटेन करना, जीना फ्रेशर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। सो उसके लिए ऐप बनाई है और उसी को सपोर्ट करने के लिए मैंने उसको फ्री में रखा है। आई एम नॉट चार्जिंग एनी मनी इनिशियली। मेक योर प्रोफाइल 100%, जो डेटा मांग रहा है वो भर दो, फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाओ, काम आएगा डैशबोर्ड पे, चेक करो, पसंद है काम अप्लाई करो, नहीं पसंद है इग्नोर कर दो, छोड़ दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक एंट्री को हमको अप्लाई करना है। तो ये चीज़ें प्रोविज़न बनाई हुई है। तो ये एक ऐप है, फिल्मी जॉब्स। फिल्मी जॉब्स, गो अप्लाई अगर आपको काम चाहिए फिल्मी। तो इंटरेस्टिंग, फिल्मी जॉब्स। कास्टिंग का काम क्यों बंद कर दिया सर? शिट, मैं तो सोचा था यहीं पे इसी इंटरव्यू में थोड़ा बहुत ऑडिशन दे देता। ये मेरा राइट प्रोफाइल, ये मेरा लेफ्ट प्रोफाइल। कास्टिंग का काम छोड़ने की कई सारी वजह थी। 2007 और 2009 में मैंने 2 फिल्में बनाई। और कौन सी सर? एक भोजपुरी बनाई, एक मराठी बनाई। अरे वेरी नाइस। 2 प्रोड्यूस की और मराठी मैंने डायरेक्ट भी खुद दी की। सो फिल्में तो अच्छी बन गई लेकिन थोड़ी गलती हो गई। एटीट्यूड आ गई मुझे कि मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गया हूँ, अब मैं कास्टिंग कैसे करूँगा। सच बोलने में कोई गुनाह नहीं, तो थोड़ा सा मैंने हाथ खींच लिया था। प्लस थोड़े इंडस्ट्री के तौर तरीके डिफ़िकल्ट होते जा रहे थे। पहले हम लोग बोलते थे लड़कियां सेफ़ नहीं है, 2014 और 12 आते आते पता चला कि आजकल लड़के भी सेफ़ नहीं है। सो वो चीज़ें मैंने हैंडल नहीं कर पा रहा था। और मैंने मेरे प्रोफेशन में 22 साल में क्लीन स्लेट रखा हूँ, कोई ऐसे गलत व्यवहार वाले काम करने ना दिया हूँ मेरे ऑफिस में किसी को भी। सो कई सारी वजह थी, प्लस फोटोग्राफी बिजनेस सेट हो गया था और इधर थोड़ा ये प्रेशर्स हो रहे थे और मेरा काम नहीं करना है। वाइफ ने भी बोला बहुत हो गया, 22 साल मैंने काम किया है, नाउ आई डोंट वांट टू वर्क, तो करके बंद किया। वाइफ इज राइट। वाइफ इज़ राइट, ऑलवेज राइट। हर टाइम वो राइट होती हैं। बोले नहीं करना है, ठीक है नहीं करना है, नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने वापस चालू कर दिया वाया दी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वाया दी नेट। उम्मीद करता हूँ इट वर्क्स वेल। फिंगर्स क्रॉस्ड, एंड हम भी यही उम्मीद करते हैं। सर ये बताइए, जब आप कास्टिंग कर रहे थे तो कौन सी फिल्मों के लिए आपने कास्टिंग की? अनगिनत। कुछ एक, अगर 1-2 नाम। बहुत सारी हैं फिल्मों की। फिल्मों में ज़्यादा मैंने हाथ नहीं डाला एंड सीरियल्स में मेरा हाथ बहुत बैठा हुआ था। जैसे बहुत सारी सीरियल्स सर, अनगिनत छोटी मोटी सीरियल रोज़ होती थी जिसका नाम भी मुझे याद नहीं होगा। इतनी सारी सीरियल कर चुका हूँ। मेमोरेबल कौन सा रहा? मेमोरेबल इन सीरियल डेफिनेटली बनो मैं तेरी दुल्हन, उसमें जो हीरो कास्ट हुआ था। उसके अलावा क्यों एक फिल्म बनी थी जिसका एक वन ऑफ द आर्टिस्ट वाज थ्रू माय कंपनी। देन सीरियल में बहुत सारे एक्टर्स हैं। अभी हाल ही में लास्ट नाम याद नहीं आते हैं। तो ये कास्टिंग होती कैसे है ये बताइए। एक तो होता है डायरेक्टर जो फिल्म को डायरेक्ट करता है, वो पूरी शिप को स्टीयर करता है, लेकिन उस शिप के जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो कास्टिंग डायरेक्टर लेकर आता है। तो ये होती कैसे है एंड कैसे बने एक कास्टिंग डायरेक्टर? सर कास्टिंग डायरेक्टर के लिए कोई क्वालिफिकेशन आजकल बनी हुई है, लंदन से सब ले आ जाते हैं, वो अलग बात है। प्रैक्टिकल की बात करो, स्क्रिप्ट सबसे पहला फाउंडेशन है। जो राइटर ने बयान किया है कि कैरेक्टर क्या है, कहाँ से आया है, गांव से आया है, गरीब है, अमीर है, लुच्चा है, लफंगा है, किस किस्म का कैरेक्टर है, वो राइटर जो विजुलाइज करके लिखते हैं पहले उस चीज़ को समझना पड़ता है। वो समझने के बाद में
देन यू हैव टू हंट, आपको ढूंढना पड़ता है इसमें मैच कौन करेगा, बजट में कौन बैठेगा, हाइट एंड लुक्स में कौन बैठ रहा है जो डिस्क्राइब किया गया है। उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग होकर डायरेक्टर को दिखाया जाता है। अब राइटर ने तो अपना सपना देखा, डायरेक्टर भी अपना सपना देखता है, मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो 19-20 चेंजेस आती हैं, तो वी हैव टू एडमिट besides the script we have to go with the director's visual because he has not written it, but वो visualize करके shoot करवाने वाला है, तो उसकी भी सहमति होनी बहुत ज़रूरी है और समझना पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं। डायरेक्टर से मिलने के बाद ही उसके कैरेक्टराइजेशन को ज़्यादा डीपली समझा जाता है। उसके बाद में आप कास्टिंग करो एंड फाइंड द राइट टैलेंट एंड ब्रिंग इट ऑन बोर्ड। अगर कनिंग इंसान है कैरेक्टर में लिखा हुआ, तो यू हैव टू फाइंड हु लुक्स कनिंग ऑल्सो। आप एक्ट करके कनिंग बनो, उससे बेहतर है अगर आप लुक में मेरे को कनिंग दिखते हो तो मेरा काम आसान हो जाता है, साला दिखता ही कनिंग है तो इट बिकम्स ईजी। सो कास्टिंग इज मिक्सचर ऑफ राइटर एंड डायरेक्टर एंड देन व्हाट दे विजुअलाइज एंड हाउ दे ट्रांजैक्ट एंड ट्रांसलेट। फिर लास्ट में दूसरा भी सोचना पड़ता है, वो है प्रोड्यूसर। भाई साहब के पास बजट क्या है, कितने दिन का काम है, फिर उस हिसाब से चुनना पड़ता है। अगर आप फिल्म बनाने जा रहे हो 5 करोड़ की, तो जाहिर सी बात है आप शाहरुख खान के पास तो नहीं जाओगे ना, अक्षय जी के पास ही नहीं जाओगे। सो अकॉर्डिंगली जैसी बजट, जैसा कैरेक्टर, जैसा एक्टर, उसको सब मद्देनज़र रखते हुए शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है। Right. जी। तो ये फीस आप लोग के पास एक क्या कुछ चार्ट होता है जिसमें आपको पता होता है, या कोई ऐसी लिस्ट होती है कि इसकी इतनी फीस है, इसकी इतनी फीस है, कि नहीं, फीस का क्या सीन होता है सर? फीस कोई फिक्स नहीं होती, कोई किसी की फीस की लिस्ट नहीं है। इज़ नॉट अ हेयर कटिंग सैलून कि जहाँ बाल काटने के 200 रुपये 500 रुपये लिखे जाते हैं। किसी की फ़ी फिक्स नहीं है। वही इंसान मेरे साथ 1 रुपये में काम करेगा, आपसे 10 रुपये ले लेगा। वो हो सकता है कहीं बाहर थर्ड पार्टी के पास जाए, बोले नहीं मेरे को तो 50 रुपये चाहिए। तो देयर इज़ नो प्राइस लिस्ट। प्रोजेक्ट इज़ ऑफ इंटरेस्ट। मैंने देखा है कई एक्टरों ने कई प्रोजेक्ट्स में फ्री में काम किया है, क्योंकि उनके लिए वो कैरेक्टर बहुत मायने रखा है। बजट जाए भाड़ में, बजट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। प्रोड्यूसर बोलेगा मेरे पास बजट नहीं है, नहीं सर मैं फ्री में करूँगा, आपका पैसा रिकवर हो जाए बाद में आप मुझे दे देना। तो इस प्रकार से भी गाड़ी चलती है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक का कोई जैसे होटल में टैरिफ होता है, मेन्यू कार्ड नहीं है। मेन्यू कार्ड नहीं है, किसी का भी मेन्यू कार्ड नहीं है। थैंक गॉड। सर कास्टिंग की हम बात कर रहे हैं, एक तरफ आप हैं जिन्होंने अपना पूरा जो अभी तक का करियर है उसमें इंश्योर किया है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे और अच्छे ढंग से हो। वहीं एक टाइम मुझे याद आता है जब कास्टिंग काउच को लेके इंडस्ट्री पे बहुत सारी तोहमत भी लगाई गई थी, बहुत सारे ऐसे केसेस भी निकल के सामने आए थे। तब एज अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द फ्रेटर्निटी, आपने क्या, हाउ डिड यू टेक इट? लाइक I took it very proudly and with a very balanced mind. If you want casting couch business, my office door is shut. आपके साथ कभी हुआ कोई, मतलब? हाँ हाँ, बहुत आते डायरेक्टर लोग सामने आके बोलते थे क्या? फाइंड टैलेंट विच इज़ एग्री ऑन दीज टर्म्स, जो कॉम्प्रोमाइज़ करे। जी। और मैं बोलता था मेरे ऑफिस में जो मेरा रूम है उसको लैच नहीं है, लॉक नहीं है, दरवाजा खुला पड़ा है, फटाफट उठ के भाग जा वरना मारूंगा। सो आई हैव बिन वेरी नीट एंड क्लीन एज फार एज आई एम कंसर्न। लेकिन मार्केट है, और ये मुझे दूसरा स्टेटमेंट बोलना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। ये कास्टिंग कोच का जो सवाल आते रहता है, कौन सी इंडस्ट्री कास्टिंग कोच से दूर है? हम सिर्फ हमेशा जिक्र करते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे, क्योंकि लाइमलाइट है हमारे पास, स्टार्स हैं, चमक धमक है, तो मीडिया और एनीबडी दे कम एंड पाउंस ऑन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। क्यों? क्या दूसरी इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच नहीं होता है? कौन सी इंडस्ट्री है जो क्लीन है? मेरे को एक का नाम बताओ।
I challenge. So let's not disrespect the entertainment industry alone, क्योंकि वो लाइमलाइट में है, पेपर में लिखा जाता है, टीवी चैनल पे बताया जाता है, न्यूज़ पे हंगामा हो जाता है. नहीं, वाई? कभी किसी ने लिखा है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में फला फला रिसेप्शनिस्ट का बलात्कार हुआ, या कॉम्प्रोमाइज़ के लिए डिमांड की गई, या कॉम्प्रोमाइज़ हुआ? नहीं, सब जगह होता है भाई. लेट्स नॉट टॉक अबाउट कॉम्प्रोमाइज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट. बदनाम ना करो प्लीज़. तो अभी आपने 90s की अभी जिक्र किया, अब हम 2023 में बैठे हैं. तब भी इंडस्ट्री वाज थ्राइविंग, चल रहा था, काम चल रहा था, अब भी चल रहा है. लेकिन क्या आपको लगता है कि आज एक लेवल प्लेइंग फील्ड है जहां सबको अपॉर्चुनिटी है? हाँ, कुछ हद तक काफ़ी सारे कैनवास खुल गए हैं. आज इतना कंटेंट बनता है. मेरे को याद है जब हम बच्चे थे, जब मैं छोटा बच्चा था, तो मुझे मालूम है महीने में एक फिल्म रिलीज होती थी. हमने सुना है, हाँ, वो टाइम. आज की तारीख में दिन के अंदर हर चैनल कम से कम 8 घंटे का नया सास बहू कार्यक्रम बनाता है, जिसके अंदर 16 एपिसोड होते हैं. मतलब 16 एपिसोड रोज़ बनते हैं हर चैनल के लिए, जो लोग रिपीट भी करते हैं. दोपहर में चलाएंगे, रात में चलाएंगे, 8 घंटे का जो बैच होता है. तो 16 नई प्रोडक्ट रोज़ शूट होती हैं हर चैनल के लिए. अब आप हिसाब लगा लो हिंदुस्तान में कितने चैनल हैं जो ये सास बहू दिखाते हैं, या क्राइम पेट्रोल दिखाते हैं, या जो भी दिखाते हैं. हद से ज़्यादा हैं. इतना कंटेंट बारी बनकर बन रहा है. फिल्में याद है हफ्ते में एक आती थी, आज हफ्ते में लड़ाई होती है, 4-4 फिल्में आ जाती हैं. जो छोटी फिल्म होती है वो बेचारी मर जाती है, कोई देखता नहीं, कुछ पता भी नहीं चलता. इनफैक्ट कुछ हफ्ते पहले मेरे से भी ये हुआ कि टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने खोली थी, अचानक से मैं रिव्यूज़ पढ़ रहा था, तो देखा 4 फिल्में रिलीज़ हुई हैं और चारों का नाम मेरे जहन में नहीं था. पता ही नहीं कि जबकि मेरे पोर्टल में उनकी एंट्री थी. बट पोर्टल में एंट्री थी ना, मेरे पोर्टल की एंट्री से मैं दुनिया भर में कहाँ से पहुँचाऊँ? वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. सो 4-4 फिल्में बन रही हैं आज हर हफ्ते में. ये हो गई हिंदी की बात. इंडिया की बात करो, इंडिया 2000 फिल्में बनाती है. ऐसे 16 के हिसाब से मल्टीप्लाई करो, कम से कम 100 चैनल है. ऑल इंडिया, तमिल, तेलुगु, मलयालम में सब जगह ये ड्रामे चलते हैं. कितने ड्रामे बनते होंगे रोज़ के? बाप रे, 1600 कम से कम 1600. उसके बाद में आते हैं OTT प्लेटफॉर्म खुल गए हैं. आज OTT भी इस प्रकार से आगे खड़ा हो गया है कि उनको भी हर हफ्ते नया प्रोग्राम लाना है. और वो लोग भी इतने ताकतवर हो गए हैं बिकॉज ऑफ दी फैसिलिटीज़ दे हैव गॉट अवेलेबल. उनके पास इतना माध्यम है कि वर्ल्ड में एक ही झटके में फिल्म दिखा देते हैं. तो उनकी ऑडियंस को भी मस्त है. अभी जियो आ गया है, जियो सबकी जान ले लेगा. हकीकत है. तो आई मीन दे विल प्रोड्यूस फिल्म्स, दे विल प्रोड्यूस सीरीज, दे विल प्रोड्यूस एवरीथिंग, दे विल कैप्चर. तो आज कंटेंट कौन नहीं बना रहा है, मुझे उसका नाम बताओ. तो लेट अस समझें कि कितना कंटेंट बन रहा है, तो उतने लोगों की अपॉर्चुनिटी है. आज उस कंटेंट को कवर करने के लिए कितने चैनल हैं, कितनी न्यूज़ बनती है, कितने कैमरामैन, कितने राइटर्स, कितने डायरेक्टर्स, कितने एंकर्स, कितने लोग इन्वॉल्व है इस इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए. सो इंडस्ट्री इंटरटेनमेंट बहुत बड़ी है. हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अनऑर्गेनाइज्ड है. जैसे कि एक फिल्म बनती है तो सब लोग कॉन्ट्रैक्ट पे, जॉब प्रोफाइल पे आते हैं. दुख की बात है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं. जबकि आप बैठे हो ABP न्यूज़ में, आपका पूरा मैनिफेस्ट है, स्टाफ है, सैलरीज हैं, सेटअप है और सुविधाएं हैं. फिल्म इंडस्ट्री में वो सुविधा नहीं मिल पा रही. वो सारा सा बड़े बुज़ुर्गों को देखना पड़ेगा जो इम्पा या विम्पा या कई सारे एसोसिएशंस चलाते हैं. उनको कुछ करना चाहिए. ऐसी मेरी सोच है. नहीं सर, अच्छी सोच है सर. इंडस्ट्री की बात कर, थोड़ा लाइटर नोट पे. जी जी.
बट जरूरी है बोलिए ये ना, बातें क्या करना। सवाल? सर नहीं ये था बिकॉज अभी हमने काफी अच्छा और सीरियस कॉन्वर्सेशन किया। ओके, अभी लाइटर मोड। इंडस्ट्री में आपका फैन मूवमेंट बताइए जरा, वो कौन से स्टार्स हैं या वो फिल्म डायरेक्टर्स हैं जिनसे आप मिले या जिन्होंने आपको प्रभावित किया हो ऐसा? नहीं, प्रभावित करने बहुत एक्टर अच्छे अच्छे मिले, बहुतों के साथ काम किया, बहुतों को काम दिलवाया, बहुत सारे डायरेक्टरों के साथ संपर्क हुए। मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू सेल माई सेल्फ बाय टेकिंग नेम्स। इंटरेस्टिंग। बहुतों को जानता हूँ मैं। बात सोचो ना, 22 साल इज़ नॉट वन डे। हमारा ये कैमरामैन 22 साल का है। तो उसमें मैंने ऐसे हज़ारों को कास्ट किया था, हज़ारों को। मैं किसी का भी नाम लेके उसको अलग नहीं करना चाहूँगा। दैट इज़ माई प्रोफेशन। मैंने मेरा काम किया, उन्होंने अपना काम किया, बिकॉज उनमें वो टैलेंट था। न मैंने उन पे कोई एहसान किया, ना उन्होंने मुझ पे कोई एहसान किया। इट इज़ अ अपॉर्चुनिटी आई ट्राई टू बिल्ड। मैंने एक अपॉर्चुनिटी बिल्ड की। तो मैं टैलेंट है, मेरे को पता है यहाँ टैलेंट की रिक्वायरमेंट है, मैंने ब्रिज बना के दोनों को मिलाया, काम करवाया। सो मैं उसके लिए किस किस्म की क्रेडिट लूँ? मैंने स्टार बनाए, बूम, गलत है। हम स्टार नहीं बना सकते सर। स्टार उसमें है जिसमें दम है, टैलेंट है तो ही स्टार बनोगे ना। आप अगर बोलो कोई इंसान किसी को स्टार बनाता है, सॉरी, आई डोंट एग्री। तो ये फिर तो ये किंग मेकर का कॉन्सेप्ट ही खत्म। गलत है ना। मैंने बोला किंग मेकर होना ही नहीं चाहिए। काहे का किंग मेकर? ये कोई हमारी पॉलिटिकल हाँ, पार्टी नहीं है। पार्टी नहीं है या कॉन्टेस्ट नहीं है कि वहाँ पे हम किंग मेकर बनाए कि हम तुमको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, और वहाँ पे किंग मेकर जैसा शब्द इस्तेमाल होता है क्योंकि वो किंग है। हमारे यहाँ अगर किसी को बोला जाता है किंग मेकर, तो आई फील वेरी सैड एंड एम्बेरस्ड कि किंग मेकर किस कीमत पे। उसमें टैलेंट है, उसको ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करना है। वैसे तो कास्टिंग में दूसरा भी पहलू चलता है। फ़ोन आती है, हेलो हमारी शूट है, हमको हीरोइन चाहिए, हमको हीरो चाहिए। और कोई ब्रीफ नहीं। इतने कास्टिंग डायरेक्टर बैठे हैं, 50 नहीं 100 लोगों को भेज देते हैं, और डायरेक्टर सर पकड़ के बैठता है, भीड़ लगे। अभी आया है तो उसका वो पैटर्न एक्सेप्ट करके बैठा है कि 200 जन आएंगे, मैं 200 जन की ऑडिशन लूँगा, फिर उसमें से चुनूँगा। अभी कई डायरेक्टर्स का तो ये भी, या कई प्रोड्यूसर का ये कंसेप्ट होता है कि इनमें मुर्गी ढूंढो, कौन पैसे लगाएगा। और यहाँ पे बैठे हैं लोग, बोलते सर मैं पैसे लगाऊंगा, मेरे को हीरो लो। अभी स्क्रिप्ट में तुम फिट नहीं बैठ रहे हो, लेकिन प्रोड्यूसर का पेशा है धंधा, पैसे वो लगा रहा है, स्क्रिप्ट में फिट होता है नहीं होता है, हीरो बनाओ, इसकी फिल्म बना लो। वो फिल्में बनती हैं जो कभी नहीं चलती, वो डब्बों में बंद पड़ जाती हैं, या खुद हीरो बैठ के अपने घर पे देखता है। ये फैक्ट है। फैक्ट है। किंग मेकर बोलना फिर बहुत ही गलत तखल्लुस है, नहीं बोलना चाहिए किसी को। सर इंटरव्यू में बहुत मजा आ रहा है, आपको मजा आ रहा है? यार बताया, तुम्हारे सवाल ही कुछ अलग अलग हैं। नहीं मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। इंटरव्यू एंड करे उससे पहले वन फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूँगा। वो पेरेंट्स जो हैं, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे मॉम डैड, जब मैंने बोला कि आई वांट टू बी एन एक्टर, आई वांट टू बी एन एंकर, एंटरटेनर, जी, एक तो अलग अलग तरीके से मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की, तो उनका पहला सवाल था जॉब सिक्योरिटी को लेकर। करेक्ट। तो सर आप अपने इस ऐप के थ्रू या आपके इस इनिशिएटिव के थ्रू, फिल्मी जॉब्स के थ्रू, हाउ विल यू इंश्योर कि जॉब सिक्योरिटी हो? जॉब सिक्योरिटी का मैंने पहले ही जिक्र किया, मैंने पहले ही मेंशन किया। आप लोग की जैसे जॉब सिक्योर्ड है, सैलरीड हो, फैसिलिटीज़ हैं। हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जॉब सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बनती है। प्रोजेक्ट है 25 दिन की, 50 दिन की, 100 दिन की।
म्यूज़िक लेना है, म्यूज़िक है, तुम म्यूज़िक बना के दे दो, थैंक यू वेरी मच, तुम तुम्हारे पैसे गिनो, टाटा बाय बाय। अगली फिल्म जब हम बनाएंगे तब अगर काम अच्छा रहा, सक्सेस रहा, तुम्हारी म्यूज़िक हमको 2 पैसा कमा के दी, टी सीरीज़ ने हमारी फिल्म को अच्छे पैसे दिए, तो फिर दूसरी फिल्म तुम्हारे साथ बनाएंगे, वरना दूसरा म्यूज़िक डायरेक्टर ढूंढो। सो इज़ वेरी सिंपल अर्थमेटिक। कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। आज फिल्म की बात छोड़ो, सीरियल, कई सीरियल 5-5 साल चले हैं, लेकिन 5-5 साल चलने के बावजूद भी किसी भी स्पॉट बॉय या किसी भी आर्टिस्ट को कोई गारंटी नहीं है कि कल ये शो रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा। अचानक से नोटिस आ जाता है चैनल से, रैप अप, स्टोरी को एंड करो, अगले हफ्ते से नया शो आ रहा है, थैंक यू। क्या कर सकते हो? जॉब सिक्योरिटी नहीं है। सिर्फ बात समझिए, जिसको भी आना है इंडस्ट्री में, दे शुड बी वेरी क्लियर, यू मस्ट ट्राई योर टैलेंट। टैलेंट है, आओ, डेफिनेटली ट्राई करो, बट ज़िद मत करो, मैं तो कुछ भी करूँगा, मुझे तो ये करना ही है। डजंट वर्क, इट डजंट वर्क। जैसे माँ बाप हमेशा सोचते हैं बच्चा सिक्योर रहे, माँ बाप बहुत मना करते हैं कि बम्बई मत जाओ, उसीलिए ये मैंने ऐप बनाई है। बम्बई आने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्टर करके बैठ जाओ, जॉब आई, ठीक है, आ जाना भाई, नसीब तो चाहिए ना, बगैर नसीब के तो तुम स्टार नहीं बन सकते हो। नसीब में आया, आ जाओ, आके काम करो, और फिर जो नसीब जहाँ ले जाए। जब तक नसीब नहीं आया तो क्यों घर छोड़ना। मैंने देखा है कई लोग घर छोड़ के आए हमारे उस टाइम पे, भूम, लाखों रुपए लुटा के वापस चले जाते हैं। फेलियर से कितनी ज़िल्लत होती है, मैंने अपने आँखों से देखा है। कोशिश कर रहा हूँ इस माध्यम से कि इन सब चीज़ों का थोड़ा सा समाधान हो जाए, और मेरे प्रोड्यूसर फैटर्निटी को भी इनवाइट करूँगा, आए ऐप के ऊपर। इस वक्त क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, पर थोड़ी बहुत है, जो है आके प्रोड्यूसर आके टैलेंट को कास्ट करो, ताकि उनमें भी कुछ हिम्मत आए, सही टैलेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिले। सो यही उम्मीद है कि आपके इनिशिएटिव के थ्रू यंग टैलेंट, नए टैलेंट को एक जो वो डिजर्व करते हैं वो मुकाम मिले। करेक्ट। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। Thank you एंड गाइस, अगर आपको पसंद आया इंटरव्यू, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दैट्स इंपॉर्टेंट हमारी जॉब सिक्योरिटी के लिए। बट मोर देन दैट, अगर आप जॉब्स ढूंढ रहे हैं फिल्म में या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, तो प्लीज सर का जो ऐप है फिल्मी जॉब्स, go check out, register yourself, and hope you find what you seek.